عزیز طلباء و طالبات، جیسا اس آن لائن کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ہم علم معاشیات کا پہلا سبق جزوی اور کلی معاشیات کا تعارف اس کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اس کا مطالعہ کچھ حصوں کا مطالعہ ہم کر چکے ہیں، جیسا کہ جزوی معاشیات کا تاریخی پس منظر، جزوی معاشیات کی خصوصیات، معنی و مفہوم، اہمیت و افادیت، اور اس کے علاوہ جزوی معاشیات کی مختلف تعریفوں کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم کلی معاشیات کا مطالعہ کریں گے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، کلی معاشیات سے مراد کلی معاشیات میکرو اکنامکس جسے کہا جاتا ہے۔ میکرو اکنامکس، میکرو یہ لفظ لاطینی لفظ سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی بڑا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے کلی معاشیات جو ہے معیشت کی بڑی اکائی کا مطالعہ کرتا ہے، یعنی معیشت کی انفرادی اکائی کا مطالعہ نہیں کرتا بلکہ معیشت کی مجموعی جملہ یا کل اکائیوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ کلی معاشیات جو ہے پوری معیشت کی تمام سرگرمی کا مطالعہ کرتا ہے۔ سرگرمی کا مطالعہ کرتا ہے تو کلی معاشیات جنگل میں موجود ایک درخت کا مطالعہ نہیں کرتا بلکہ جنگل میں موجود تمام درختوں کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ کلی معاشیات جو ہے مجموعی اکائیوں کا مطالعہ کرتا ہے، معیشت کی مجموعی اکائیوں کی سرگرمی، سلوک اور برتاؤ کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو کلی معاشیات کو سمپلی ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کلی معاشیات جیسے مثال کے طور پر کلی معاشیات جو ہے انفرادی آمدنی کا مطالعہ نہیں کرتا بلکہ کلی معاشیات جو ہے مجموعی آمدنی یعنی قومی آمدنی کا مطالعہ کرتا ہے۔ کلی معاشیات ایک شے کی قیمت کا مطالعہ نہیں کرتا بلکہ کلی معاشیات جو ہے تمام اشیاء و خدمات کی قیمتوں کی عام سطح کا مطالعہ کرتا ہے۔ اسی طرح سے کلی معاشیات جو ہے روزگار کی عام سطح کا مطالعہ کرتا ہے، اسی عام سطح کا مطالعہ کرتا ہے، افراط زر، تفریط زر وغیرہ کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو کلی معاشیات جو ہے مجموعی مانگ کا مطالعہ کرتا ہے، مجموعی رسد کا مطالعہ کرتا ہے، مجموعی سرمایہ کاری، مجموعی بچت وغیرہ کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلی معاشیات جو ہے یہ کل کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، کلی معاشیات کی مختلف تعریفیں ہیں۔ تو پہلی تعریف جو ہے پروفیسر جے ایل ہانسن کے مطابق کلی معاشیات کی ایک ایسی شاخ ہے، ایک ایسی برانچ ہے جس میں کل روزگار، کل بچت، کل سرمایہ کاری اور قومی آمدنی ایسے بڑے موضوعات اور ان سے متعلق موضوعات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان شارٹ ہم اس کو اس طرح سے بھی اس کے معنی مفہوم یہی نکلتا ہے کہ کلی معاشیات جو ہے مجموعی ایک سرمایہ کاری، مجموعی روزگار، مجموعی بچت، مجموعی آمدنی یا قومی آمدنی کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو اس طرح سے کلی معاشیات جو ہے بڑے موضوعات کا مطالعہ کرتا ہے اور ان موضوعات سے متعلق موضوعات کا بھی کلی معاشیات مطالعہ کرتا ہے، کیونکہ کلی معاشیات معیشت کی تمام اکائیوں کی سرگرمی کا مطالعہ کرتا ہے یا پوری معیشت کا مطالعہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بڑے موضوعات اور ان سے متعلق موضوعات کا بھی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو ہماری دوسری ڈیفینیشن جو ہے پروفیسر کارل کی ہے۔ پروفیسر کارل کے مطابق کلی معاشیات معیشت کی مجموعی کارکردگی کے متعلق ہے، یعنی معیشت کی مجموعی کارکردگی کا مطالعہ کلی معاشیات کرتا ہے، یا کلی معاشیات کا مطالعہ جو ہے معیشت کی مجموعی کارکردگی سے تعلق رکھتا ہے،
संबंधित है या ताल्लुक़ रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को भी हम यूँ समझ सकते हैं, इसका भी मानी मफ़हूम इस तरह से निकलता है कि कुल्ली माशियात जो है पूरी मईशत की मजमूई कारकर्दगी, यानी पूरी मईशत के अंदर कौमी आमदनी का मुताला करेगा। मईशत के अंदर ये कुल आमदनी का मुताला करेगा, कुल बचत का मुताला करता है, और इसके अलावा कुल बचत के अलावा कुल सरमायाकारी, इन तमाम एग्रीगेट जिसको कहा जाता है, जुमला तमाम इकाइयों की सरगर्मियों के सलूक और बर्ताव का मुताला करता है। तो कुल्ली माशियात जो है मईशत की मजमूई कारकर्दगी से मुताला करता है। तो डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द जज़ैल खाके की मदद से कुल्ली माशियात की वजाहत की जा सकती है। ये कुल्ली माशियात का दायरे बहस है। तो देखेंगे तख्ते के ज़रिए हम किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है कुल्ली माशियात। 4 हिस्सों में इसको तकसीम किया गया। आमदनी और रोज़गार का नज़रिया है, इफ़रात ज़र और आम कीमत की सतह, नशोनुमा और तरक्की का नज़रिया। चौथा जो है तकसीम का कुल्ली नज़रिया। अब आमदनी और रोज़गार के नज़रिए में सरमायाकारी का नज़रिया है, सर्फी अमल का नज़रिया है, और इन दोनों का ताल्लुक़ कारोबारी चक्कर यानी तिजारती चक्कर से है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से एक एक पॉइंट लेंगे। आमदनी और रोज़गार का नज़रिया। कुल्ली माशी नज़रिया इस बात को वाज़े करता है कि किस तरह से कौमी आमदनी और रोज़गार की सतह का तयन किया जाए, यानी किस तरह से कौमी आमदनी में कमी और बेशी, कौमी आमदनी में इजाफ़ा किया जाए, रोज़गार की सतह में इजाफ़ा किया जाए, इस तरह से आमदनी की सतह, कुल पैदावार और रोज़गार में कमी और बेशी की क्या वजूहात हैं। जब रोज़गार में आमदनी में कमी और बेशी की क्या वजूहात हैं, कुल पैदावार में कमी और बेशी की क्या वजूहात हैं, और रोज़गार की सतह में कमी और बेशी की क्या वजूहात हैं, इन तमाम का मुतालिया जो है कुल्ली माशियात करता है। कुल्ली माशियात किस तरह से आमदनी और रोज़गार की सतह मुतय्यन की जाती है, ये समझने के लिए हम कुल मांग और कुल रसद के अवामिल का मुताला कर चुके हैं। कुल मांग और कुल रसद, जैसा कि कुल मांग और कुल रसद जो है से रोज़गार की सतह मुतय्यन होती है। मजमूई मांग और मजमूई रसद जब एक दूसरे पर असरअंदाज होती हैं तो रसद तफाउल जिसको कहा जाता है, कुल रसद तफाउल, कुल मांग तफाउल, तो उससे रोज़गार की सतह मुतय्यन होती है। जिस मकाम पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कुल मांग का ख़त, कुल मांग तफाउल का ख़त और कुल रसद तफाउल का ख़त, उस मकाम पर रोज़गार की सतह मुतवाज़ुन होती है। और उससे पहले जो है रोज़गार की सतह में इजाफ़ा, यानी रोज़गार की सतह में इजाफ़ा करते करते उस मकाम तक इजाफ़ा किया जा सकता है जब तक कुल मांग और कुल रसद एक दूसरे पर असरअंदाज ना हो। जिस मकाम पर कुल मांग और कुल रसद एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, उस मकाम पर रोज़गार की मुतवाज़ुन कैफियत होती है, रोज़गार की सतह मुतवाज़ुन कैफियत में होती है। लेकिन अगर उससे आगे हम बढ़ें तो नुकसान से दो चार हो जाती है फर्म। तो इस तरह से रोज़गार की सतह को उस वक्त तक इजाफ़ा किया जा सकता है जब तक कुल मांग और कुल रसद एक दूसरे पर असरअंदाज नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसको हम आगे चैप्टर्स में ये मौजूद है, तो हम इसको और वाज़े करेंगे। तो मज़ीद हम सर्फ़ और सरमायाकारी के अमल का मुताला कर चुके हैं। सर्फ़ और सरमायाकारी का अमल कुल्ली माशी नज़रिए के लिए अहम है। जब सर्फ़ में इजाफ़ा होता है, सर्फ़ और सरमायाकारी, सर्फ़ जैसा कि इसका ताल्लुक़ आमदनी से है, आमदनी, सर्फ़ और बचत। जैसा कि जब आमदनी सर्फ़ ज़्यादा होता है तो बचत कम होती है, और जब आमदनी की सतह ज़्यादा होती है तो बचत ज़्यादा होती है, और जिसकी वजह से सरमायाकारी ज़्यादा होती है, यानी कुल सरमायाकारी ज़्यादा होती है। तो इससे ये तमाम को हम कुल्ली माशी नज़रिए के लिए ये अहमियत के हामिल हैं, और ये तमाम नज़रिए कुल्ली माशी नज़रिए के लिए अहम हैं। ये नज़रिया आमदनी और रोज़गार की जांच करता है और मसाइल के हल के लिए हिकमत अमली तजवीज़ करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा
पॉइंट है इफरात ज़र और आम कीमत की सतह का नज़रिया। कुल्ली माशियात कीमतों की आम सतह किस तरह से मुतय्यन होती है, इसमें कमी और बेशी की क्या वजूहत हैं, इसकी भी वजाहत करता है। कीमतों की आम सतह अशिया खिदमात की कीमतों की आम सतह किस तरह से मुतय्यन होती है, इसमें कमी और बेशी की क्या वजूहत हैं, इसकी वजाहत जो है कुल्ली माशियात करता है। ये कीमतों की आम सतह यानी तेज़ी और मंदी पैदाशुदा मसाइल को समझने में अहम है। इफरात ज़र और कद्र में कमी या तफरीत ज़र इन दिनों ज़्यादातर ममालिक ने सामना किया है। कुल्ली माशियात तेज़ी और मंदी के असरात और उनकी वजूहत का मुताला करता है, मसाइल के हल के लिए हिकमत अमली तय करता है, इस तरह से मसाइल से निकलने के लिए तजवीज़ पेश करता है। तो कुल्ली माशियात कीमतों की अशिया और खिदमात की कीमतों की आम सतह किस तरह से मुतय्यन होती है, इसका मुताला करता है। इसमें कमी और बेशी की क्या वजूहत हैं, इसकी भी वजाहत करता है। ये कीमतों की आम सतह यानी तेज़ी और मंदी पैदाशुदा मसाइल को समझने में अहम है। इफरात ज़र, तफरीत ज़र, कद्र में कमी इन दिनों ज़्यादातर ममालिक ने सामना किया इन मसाइल का। तो कुल्ली माशियात तेज़ी और मंदी के असरात और उनकी वजूहत का मुताला करता है, उन मसाइल से निकलने के लिए हिकमत अमली तय करता है। नशोनुमा और तरक्की का नज़रिया कुल्ली माशियात का दूसरा अहम मौजू माशी नशोनुमा और तरक्की का नज़रिया ये गरीब ममालिक में कम तरक्की और गुर्बत की वजूहत का मुताला करता है। गरीब ममालिक से मुराद पसमानदा और तरक्की पजीर ममालिक के अंदर कम तरक्की की रफ्तार कम और गुर्बत की वजूहत क्या है, इसका मुताला जो है कुल्ली माशियात करता है। इनमें नशोनुमा और तरक्की की रफ्तार तेज़ करने के लिए यानी नशोनुमा ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के लिए हिकमत अमलियाँ तय करता है। तरक्की पजीर ममालिक जो होते हैं उनमें नशोनुमा का नज़रिया बढ़ती हुई पैदावारी कुव्वत के मुकम्मल इस्तेमाल के मसले को बयान करता है। मजबूती के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नमो किस तरह से की जा सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार और तरक्की नशोनुमा किस तरह से की जा सकती है, इसकी वजाहत जो है कुल्ली माशियात करता है। तो इसलिए कुल्ली माशियात जो है नशोनुमा और तरक्की का नज़रिया है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट तकसीम का कुल्ली नज़रिया। कुल्ली माशियात मुख्तलिफ जमातों का कुल कौमी आमदनी से अज़ाफ़ी हिस्सा कितना तय किया जाता है, इसकी तशरीह और वजाहत करता है। ख़ास तौर पर मजदूर और सरमायाकार कुल्ली माशियात में कौमी आमदनी में उजरत और मुनाफे के अज़ाफ़ी हिस्से के तयन को वाज़े करता है। इस तरह तकसीम का कुल्ली नज़रिया कौमी आमदनी में किराया, उजरत, सूद और मुनाफे के अज़ाफ़े के हिस्से को वाज़े करता है। तो इस तरह से हमारे ये 4 पॉइंट्स थे, ये जुज़वी कुल्ली माशियात का ये दायरे बहस था। तो इस तरह से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं।